السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کام کا آغاز سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کی تشریح سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ اس سبق کا خلاصہ اور اس کی مشق میں موجود تمام سوالات کو حل کر چکے ہیں۔ آج ہم تشریح جو ہے اس سے اپنے کام کو لے کر آگے چلیں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے ہم سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم معنی کریں۔ شروع سے لفظ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے شیوا، طریقہ، الحاد، دین سے پھرنا، رواداری، تحمل، برداشت، رائج کرنا، جاری کرنا کسی چیز کو، نفاق، نااتفاقی، انتشار، افراتفری، زوال، پستی، اسی طرح سے یہاں مزید جو ہے وہ مشکل لفظ نہیں ہے۔ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ولولہ، جوش، جذبہ، مفاہمت، صلح، غنیمت جانا، بہتر سمجھا، مستحکم، مضبوط، احساس کمتری، دوسروں سے کمتر سمجھنا، خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، بنیاد ڈالی، بنیاد رکھی، شروع کیا، تحفظ، حفاظت، قابض، قبضہ کرنا، مشترکہ، اکٹھا، علیحدہ، الگ کرنا، تنظیم، جماعت، ذک پہنچانا، نقصان پہنچانا، اکثریت، زیادہ تعداد میں، امداد، بہم پہنچانا، مدد کرنا، عناد، دشمنی، فریب، دھوکہ، وسیع، کھلا، نمائندگی، رہنمائی، نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا، تعاون کرنا، مدد کرنا، تجویز پیش کرنا، تجویز دینا، رائے دینا، عملی جامہ پہنانا، پورا کرنا کسی کام کو، مسلم ریاست، مسلم ملک، خود مختار، آزاد، جس کو مکمل آزادی ہو، قومیت، قوم، وسعت، پھیلاؤ، استوار کرنا، قائم کرنا، اقلیت، کم تعداد میں، جدا، الگ، تصور، خیال، قیاس، خیال، جمعیت، گروہ، نسب، خاندانی سلسلہ، مستحکم، مضبوط، جداگانہ،
الگ طرز معاشرت، رہن سہن کے طریقے، نظریہ زندگی گزارنے کے بارے میں جو خیال ہو وہ، اخوت، بھائی چارہ، مساوات، برابری، عظمت کردار کی بلندی، فروغ دینا، پھیلانا، ناگوار، ناپسند، عمل پہم، مسلسل محنت، قیادت، رہنمائی، خلوص کے ساتھ، نیک نیتی سے، معرض وجود میں آنا، قائم ہونا، پیش نظر کے سامنے، فلاحی مملکت، کامیاب ملک، فلاح و بہبود، بھلائی، مفاد، فائدہ۔ یہاں تک ہماری تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم اسی سبق کی معنی جو ہے وہ مکمل ہوئے، اسی سبق کی تشریح لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے شروع سے ہم جو ہے وہ اپنی تشریح شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ تحقیق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق سے جیسے موضوعات پر لکھا۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو چند اعتقاد دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط، تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب تعصب نہیں ہوگا یہاں کسی بھی قسم کا، کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں ان سے اچھا برتاؤ رکھنا تاکہ ان کے دل جو ہے وہ نور ایمانی سے منور ہوں۔ مسلمان ہمیشہ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جانبداری، تعصب سے کام نہیں لیا، بلکہ بے تعصبی، تحمل اور بردباری کو اپنی عادت بنائے رکھا۔ لیکن جب کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں بے دین قوتوں نے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کی تو مسلمان ان لا دینی قوتوں کے خلاف ڈٹ گئے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتیں اور بیجا نوازشات سے مالا مال کیا، حتیٰ کہ وہ ملکی سیاست میں اپنے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے، اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی اپنی آزادی اور دینی معاملات جو ہے وہ ان کو ختم ہوتے ہوئے نظر آنے لگے، یعنی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزاد نہ رہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر کے آخری دور حکومت میں برصغیر کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سر فہرست نقش بندی سلسلے کے عظیم بزرگ مجدد الافسانی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے اور سرتوڑ کوشش کی۔ انہوں نے جہانگیر کے دور حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر جیل میں گئے، سختیاں برداشت کیں، اسلامی روایت تعلیمات کو زندہ کیا، انہیں فروغ دیا۔ بقول علامہ اقبال، گردن جہانگیر کے آگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اسی طرح سے تشریح آگے لے کے چلتے ہیں۔ شاہجہاں اور اس بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کی باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی گئیں۔
चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्क और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई। मुसन्निफ यहाँ इस इबारत में बताते हैं कि मुसलमानों के अपने ही दीन के मामलात में आज़ादी ख़त्म होकर रह गई। इन हालात को देखते हुए नक्शबंदी के अजीम बुज़ुर्ग ने जहाँ इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, वहाँ दूसरे लोगों ने भी उनका साथ दिया। अंग्रेज़ों ने मुग़लिया हुकूमत की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए अपने कदम मजबूत कर लिए, जिससे मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैल गई और हैदर अली सुल्तान, जो मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इनके बेटे टीपू सुल्तान न सिर्फ वो हिंदुओं का मुकाबला, अंग्रेज़ों का मुकाबला डट कर करते रहे, बल्कि मुसलमानों की फ़लाह के लिए अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस की हमायत हासिल करने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन चूँकि दूसरे लोग इनके साथ ना मिले इसलिए कामयाबी उनको ना मिली। मुसन्निफ मज़ीद बताते हैं कि इसी ज़माने में इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह और इनके बेटों, जिनमें शाह अब्दुल अज़ीज़ काबिल ज़िक्र हैं, उन्होंने बरसीर के मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों की इस्लाह के लिए तहरीक का आगाज़ किया। शाह वलीउल्लाह ने फ़ारसी में कुरान का तर्जुमा किया। मुसलमानों की पस्ती का ये आलम था कि कुरान का तर्जुमा करने की वजह से आप पर कुफर के इल्ज़ाम लगाए गए। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, इसलिए माशरती असर कबूल करते थे और मज़मूम माशरती रसूम में मुसलमानों और हिंदुओं में ज़्यादा फ़र्क ना था। चुनाचे शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद ख़ास सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिलकर मुसलमानों की मजहबी माशरती खराबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। दोनों अजीम रहनुमा इस्लामी असूलों के नफाज और मुल्क को ग़ुलामी से छुटकारा दिलाने की कोशिश में 2 मई 1831 में बालाकोट के मुकाम पर शहीद हो गए। 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई और बरसगीर में पूरी तरह अंग्रेज़ों का गलबा हो गया और मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल गई। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमाम बड़े ओहदों से उन्हें हटा दिया गया और जायदादें छीन ली गईं। इस कठिन दौर में एक शख्सियत उभरी जिन्होंने एक मसीहा का किरदार अदा किया। ये सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने तालीमी और सियासी मैदान में मुसलमानों की रहनुमाई की और एक नई रूह फूंकी। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ हुकूमत से ताउन पर आमादा किया। ये वक्त और हालात का तकाजा है और इसी में निजात है। ताहम सर सैयद ने अपनी सियासी बसीरत और दूर अंदेशी से मुसलमानों को अंग्रेज़ों से ताउन और मुफाहमत पर राज़ी कर लिया। इसी तरह से तशरीह को आगे लेके चलते हैं। मुसन्निफ मज़ीद बताते हैं कि 1885 में हिंदुओं ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी। इस जमात का मकसद हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उन्हें सियासी हालात से आगाह रखना था। लेकिन बाद में ये सिर्फ हिंदुओं की जमात बनकर रह गई और इनकी हिंदू ज़हनियत ज़ाहिर होना शुरू हो गई। हिंदुओं ने इस्लामी दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया और इस दौर को ज़ालमाना करार देने लगे। हिंदुओं की बेवफाई ने मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक का काम किया। मुसलमानों के हकूक़ का ये तंजीम तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनके हकूक़ जो है वो गसब करने लगी। उन्होंने मुसलमानों की मैशियत और कारोबार को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। अंग्रेज़ों से मिलकर मुसलमानों को मुलाज़मतों से महरूम करके ख़ुद कब्ज़ा जमा लिया।
हिंदुओं की शातिराना चालों से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा। ख़ास तौर पर 1867 में तो हिंदुओं की मकाराना जहनीत खुलकर सामने आ गई, जब हिंदुओं ने उर्दू की भरपूर मुखालफत की और उर्दू ज़ुबान को हटाने के दर पे हो गए। उन्होंने फैसला किया कि उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करके इसकी जगह हिंदी ज़ुबान राइज कर दी जाए। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान जैसे हमदर्द मिलत ने तमाम जो है वो सूरत हाल को भांप लिया और मुसलमानों का कांग्रेस में शिरकत करना उन्हें मुनासिब ना लगा। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो हिंदुओं की सियासी जमात से अलहदा होकर तमाम तवज्जो तालीमी जो है अपनी सलाहियतें और अपनी तमाम तवज्जो तालीम के हसूल पर सर्फ करें। इसी तरह मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। दारुल उलूम देवबंद के क़याम का बुनियादी मकसद मुसलमानों में तहज़ीब व माशरत की रूहानी इस्लाही कदीम इल्मी वर्सा जिसका ताल्लुक़ कुरान औला के मुसलमानों से था, उसकी हिफाजत और इशाअत था। इसके बाद सर सैयद के करीबी दोस्त नवाब वक़ारुल मलक ने 1906 में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। ये जमात ढाका में कायम की गई, जहाँ हिंदुओं की फ़रेबकारी और धोखादही से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया और 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया गया। इसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम 1914 को शुरू हो गई। ये जंग अंग्रेज़ों और जर्मनी के दरमियान हुई, जिसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। चूँकि हिंदुस्तान के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दोनों शहरों की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने तुर्की को माली और तिबी इमदाद फराहम की। इसी वजह से हुकूमत बरतानिया मुसलमानों की दुश्मन हो गई। इस जंग में बरतानिया को बेहद परेशानी और मुश्किलात का सामना था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि अगर वो जंग में जीते तो किसी भी तरह तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। अंग्रेज़ इस जंग में फ़तह हासिल करने में कामयाब हो गए तो वो अपने किए हुए वादे से मुकर गए। उन्होंने बड़ी सफाकी से तुर्की के वसी और अजीम सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुसलमानों को अंग्रेज़ों के फ़रेबकारी और वादा खिलाफ़ी से बड़ा अफसोस और दुख हुआ। अंग्रेज़ों के मुकाराना रवैये से मुसलमान मायूस हुए। उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत चलाई। ये तहरीक 1919 में शुरू हुई और 1924 में ख़त्म हुई। इसी ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुदी की तहरीक शुरू की। इस तहरीक का बानी एक मुतअस्सिब हिंदू शरधान था जिसका असली नाम मुंशी राम था। इसी तरह एक और तंग नज़र हिंदू डॉक्टर मुंजे ने सिंगटन की तहरीक शुरू की, जिसका मकसद बरसगीर में मुसलमानों के वजूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना था। डॉक्टर मुंजे का कौल था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, अगर ये मुत्तहिद हो जाएं तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हैं। 1968 में कांग्रेस ने आइनी तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू की सरकर्दगी में मुरतब की गई पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, इसे नज़रअंदाज कर दिया। हिंदुओं के इस रवैये और इनकी मकाराना जहनीत और इनकी अंदरूनी जो है वो साजिशाना जहनीत जो है वो खुलकर सामने आ गई और इन बातों के रद्द-ए-अमल में मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का और गम व गुस्से का इजहार किया और उन्हें पुख्ता यकीन हो गया कि चूँकि इनका दीन, माशरत, रहन सहन तमाम चीज़ें मुसलमानों से मुख्तलिफ है तो किसी सूरत में भी इनका हिंदुओं से मेल मिलाप और ताउन नहीं हो सकता।
इन बातों के रद्द अमल में मुसलमानों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के जलसे में अल्लामा इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन यानी पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़ पेश की। 4 साल बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्तकिल तौर पर मुस्लिम लीग के रहनुमा और सदारत के ओहदे पर फारिग हुए तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के अलहदा वतन बनाने की तजवीज़ को अमली शक्ल देने की पूरी कोशिश की और बिलाखिर 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का इजलास हुआ तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत हैं वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। कायद-ए-आज़म के इस जुर्रतमंदाना ऐलान को करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम का फ़ैसला हुआ। मुसन्निफ़ मज़ीद बताते हैं कि इस हकीकत को समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। एक बुनियाद तो वो है जो मग़रिबी दानिशवरों और मुफ़क्किरीन ने कायम की, दूसरी वो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। मग़रिब वालों ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा तोसी पैदा करके जोग्राफ़ी हदूद पर कायम की, यानी इलाक़ाई हदबंदियाँ कर दी और कहा कि कौम वतन से बनती है। जैसे जापान से जापानी कौम, चीन से चीनी, अमेरिका से अमरीकी। चुनांचा हम अगर गैर नज़र से हालात व वाक़यात का जायज़ा लें तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि इसी मग़रिबी नज़रिए के बाइस ही दुनिया के इंसानों के माबैन तबाही शुरू हुई। इसका सबूत 2 आलमी जंगों की सूरत में सामने आया। ये दोनों आलमी जंगें वतनी कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गईं। इसी नज़रिए के तहत ही अंग्रेज़ बरसगीर में आए और इनकी यही वतनियत कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि अगर मुसलमान इस नज़रिए को कबूल कर लेते तो इसके तहत महज एक मजबूर अक़लियत बन जाते, जबकि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो कलमा तैयबा पर कायम है, यानी ये नस्ल, रंग, वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, अक़ीदे की बुनियाद पर वजूद में आई। इस नज़रियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे मिल्लत कहा जाता है। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया तश्कील करते वक्त कायम की, जो मग़रिब के तसव्वुर कौमियत से बिल्कुल जुदा है। दरअसल मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई है। इसमें कौम, रंग, नस्ल, वतन इनमें से किसी भी चीज़ को बुनियाद नहीं बनाया गया। नज़रियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे महज मुसलमानों की कौम नहीं बल्कि मिल्लत कहा गया है। कलमा तैयबा को पढ़ने वाले दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, वो मिल्लत इस्लामिया में शामिल हैं और आपस में भाई भाई हैं। ये कलमा तैयबा इनके माबीन एक रूहानी रिश्ते को कायम करता है जिसके सबब सबके दुख सुख साझे हैं, सब एक जिस्म की मिसाल। जैसा कि इरशाद नबवी है, तमाम मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। इस नज़रियाती कौमियत यानी मिल्लत इस्लामिया में हर नस्ल, रंग, मुल्क के लोग शामिल हैं। हिज्जतुल वदा के मौका पर इंसानी तालीमात का निचोड़ है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। दर हकीकत जनूबी एशिया के मुसलमान, जिनमें हर नस्ल, रंग और मुख्तलिफ़ खित्ते के लोग शामिल थे, वो हिंदुस्तान में एक ऐसी कौम के मातहत बनकर हरगिज़ नहीं रह सकते थे जो खुद भी ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में बंदी हो। पाकिस्तान बनाने के पस मंज़र में यही नज़रिया कार फरमा था। मुसलमान हिंदुओं से अलग कौम हैं, इनकी तहज़ीब व सकाफ़त, उठना बैठना, इबादत का तरीक़ा सब इनसे अलग है, लिहाजा यही हमारी कौमियत की बुनियाद बनी। हमें ये बात बखूबी समझ लेनी चाहिए कि नज़रिया इस्लाम ही दर हकीकत नज़रिया पाकिस्तान है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। इस नज़रिए में इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी कदरों का तसव्वुर बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखता है। चुनांचे इस्लामी भाईचारे, मुसावात,
इंसाफ, दयानत, रहम दिली, इंसानी हमदर्दी और सीरत करदार की बुनियाद करदार की बुलंदी के बगैर नजरिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। नजरिया पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत का क़याम न था, क्योंकि एक ऐसी हुकूमतें तो पहले भी बहुत थीं। मुसलमानों की एशिया और अफ्रीका में मौजूद थी। नजरिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी उसूलों की तरवीज और शाह था, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली हुकूमत का नमूना पेश करना था। चूँकि पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर हासिल हुआ, इसलिए पाकिस्तान के मुसलमानों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और पाकिस्तान के अवाम भी इस्लामी ज़ाब्ता हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और हुकूमत भी इस्लामी असूलों की पासदारी करे। चुनाचे जब मुसलमानों ने पाकिस्तान के क़याम का फ़ैसला कर लिया तो हिंदुओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की भरपूर मुखालफत की, मुसलमानों को मटाने के दर पे हो गए। इनके पास दौलत और ताकत थी, बरसगीर में इनकी तादाद भी ज़्यादा थी, लेकिन कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत और बेलोस क़यादत ने हिंदुओं के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। चूँकि पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा हक़, ताकत और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूरन ये मुतालबा मानना पड़ा। ताहम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेलोस क़यादत ने मुसलमानों को इस वक्त यकजा किया जब वो मुंतशिर और बहुत सी मुश्किलात का शिकार थे। वो मुस्तकिल मजाज और साबित कदम थे और इनकी तमाम कोशिशें ज़ाती मुफाद से बाला तर थीं। उन्होंने अपनी बेपाया कोशिशों और मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, मुसलसल जद्दोजहद से अल्लामा इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहुँचाया। चुनांचे 3 जून 1947 को बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया। आखिरकार कायद-ए-आज़म मुसलमानों की जद्दोजहद रंग लाई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। तमाम मुसलमानान बरसगीर ने सुख का सांस लिया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से मौजूदा दौर तक बहुत तरक्की की। इसे दुनिया के अहम ममालिक में शुमार किया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की की राहों पर गामज़न रहे तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हमेशा मद्देनज़र रखना पड़ेगा और इस नज़रिए के ज़रिए से हम प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत, तवाना, अज़ीमुश्शान बना सकते हैं। अभी हमारे ज़ुम्मा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस वतन अज़ीज़ की खातिर हमारे बाउजदाद ने अपनी जानें कुर्बान की, हम इसकी खुलूस नियत से हिफाजत करें, हर तरह से इसकी तरक्की में अपना किरदार जो है वो अदा करें। दरअसल नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी रियासत बनाना है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि जिस नज़रिए के तहत हमने पाकिस्तान हासिल किया, इसकी ईमानदारी से पासदारी की जाए। हमें ऐसे कामों से ख़ास तौर पर इज्तनाब करना चाहिए जिसकी वजह से हमें मैदान महशर में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अपनी तमाम सलाहियतें और तवानाइयाँ वतन अज़ीज़ की बका के लिए वक़फ़ करनी चाहिए। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो। जब भी वतन अज़ीज़ को हमारी कुर्बानी की ज़रूरत हो, हम अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना करें। अपने मुल्क में हर तरह की गिरोहबंदी की हौसला शिकनी करें और अपने आप को भी इससे बचाते हुए तमाम पाकिस्तानी भाइयों की सलामती, तरक्की, भलाई के लिए खुलूस नियत से काम करें। हमारे इस अमल से यकीनन नज़रिया पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, तरक्की भी हासिल होगी। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने तौर तरीक़ों, रहन सहन और को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो यकीनन हम भी दुनिया की दूसरी कौमों के हम पल्ला होंगे, हमें इम्तियाज़ी मुकाम हासिल होगा। इस्लाम के ज़रिए असूलों की रोशनी में अपने प्यारे वतन को ताकतवर बनाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला भी हमारा मददगार होगा और हमारे लिए रोशन राहें खोलेगा जो हमें तरक्की की मनाजिल पर लेकर जाएंगी। हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आज के काम का इख्तिताम यहाँ तक करते हैं। वस्सलाम, अल्लाह।